कर्नल कीर्ति शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर। और आज बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, उन्होंने अटेंड किया ऑल इंडिया सज्जाद नशीन काउंसिल का जो सम्मेलन हुआ हैदराबाद में, और जिसकी अध्यक्षता की सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने, जो कि अजमेर दरगाह के ही सपोज टू बी द हेड देयर। अब उसमें जाके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने मोडेस्ट सी टोन रखी और उनसे अपील की कि भाई आप लोग नेशनल प्रोसेस में शामिल हो और बाकी लोगों को एनकरेज करें एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इंडिया के अंदर, सो दैट हम सब लोग प्रोग्रेस करें। और जब हम सब लोग प्रोग्रेस करेंगे तो जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं सबको फायदा होगा, कोई भी कम्युनिटी उसमें पीछे नहीं रहेगी। ऐसा करके उन्होंने वहां पे बोला। तो पूरे कंट्री के अंदर जो माहौल है, स्पेशली जो इवन जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आफ्टर ऑल गवर्नमेंट क्या चाह रही है, किस रास्ते पे ये लोग जाना चाह रहे हैं। क्योंकि अजमेर दरगाह से अगर आपको याद हो तो कन्हैया लाल के मर्डर के टाइम पे और उसके बाद जो जो मैसेज आए थे, वो मैसेज बड़े एग्रेसिव थे और एंटी हिंदू थे वो। तो लोगों लोगों को ये लग रहा है कि आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहले तो मुझे आपका कमेंट चाहिएगा कि आफ्टर ऑल अजीत डोवाल साहब ने उस मीटिंग में जाना चाहिए था कि नहीं, और क्या मैसेज उन्होंने दिया। गुड आफ्टरनून सर। सर, कोई भी वेल मीनिंग हेड ऑफ ए कंट्री would never want the religious enmity develops between the religions in his country, because ultimately what it does, it shifts the focus from the agenda of development to the agenda of religion, which is never good, which is not good for any country. Whenever there is a religion enmity develops between two religions, it is not good for either religion or for the country. So basic aim of Modi sending NSA to that meeting was just to encourage the Muslims also to come out of their cell and start criticizing the violent fractions of their society, as well as to encourage a brotherhood. If you have heard the names, there were Hindus also in that meeting. There were Sikhs also, Buddhists also. There was a father also. So basically, it was a gathering of all the religions, though predominantly Muslim gathering. A lot of Muslims were there. So basic Modi's attempt is that if the middle class section of the Muslims, or the, I would say, moderate section of the Muslims, start speaking against the violent fraction or the section of the society which wants violence. That is what probably Modi is trying to achieve by sending NSA there. How much he succeeds, that is $1 million question, because these chaps which they were there, like Chisti of Ajmer Dargah and all, they very, very frequently change their stance. When they are in crowd, they will say ke Sartan se juda. Like what happened in the Kanhaiya Lal case, there were several statements of some of the Chistis of Dargah to say ke Sartan se juda. However, when they come into this kind of gatherings, they talk of brotherhood. They talk of the society should come together. I think one more factor behind this Chisti's this instance was, if you had remembered the PFI document which was recovered from Bihar, that is the vision document, it basically says to wipe out all other Muslim organizations. It doesn't want any other Muslim organization to survive. It wants that all Muslims should come and support only the PFI. Basically, it wants all other Muslim organizations to go away. So similarly, those Muslim organizations other than PFI would also like that PFI should go. So that's why he supported that ban on PFI. I also sometimes wonder why Modi government is not banning PFI, considering the instances which are taking place, the documents which have been recovered, and the other persons, weapon training is being found out. I think it is high time Modi government should ban PFI. Probably it is fearing that
court should not overturn that ban. So probably they are waiting to get more evidences on their side, more documents on their side before they take this decision. So in my opinion, that is the only thing which is preventing Modi government from banning PFI. एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आप देखे होंगे कि उनकी जो वर्किंग होती है ना, वर्किंग में ये इनहेरेंट है कि जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डेवलप करना चाहता है उसको बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को वाइप आउट करना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का अगर ये इंटेंशन है जो कि उनके विजन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है तो ये तो साफ है। और ये भी बिल्कुल क्लियर है कि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या इस तरह के और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको वो वाइप आउट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे एज पर देयर प्लान। इसमें तो खैर किसी को कोई डाउट है नहीं। वेदर दे सक्सीड और दे डोंट सक्सीड दैट इज ए डिफरेंट इशू। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब क्या है, ये जो सैयद नसरुद्दीन चिश्ती इंडिया टीवी के एक प्रोग्राम में गए और जहां पे हर्षवर्धन त्रिपाठी ने, ये वीडियो भी मैं दर्शकों को दिखा दूंगा। चिश्ती साहब से पूछ रहा हूं जो चेयरमैन साहब हैं सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के। मैं कह रहा हूं कि ये जो दिमाग में लोगों के आता है उसकी वजह क्या है, कहां लिखा पढ़ते हैं वो, कौन सी जगह है, कोई किताब है, बिल्कुल कोई जगह है जहां ये पढ़ाया जाता है, कोई मजार है, कोई मस्जिद है, कोई दरगाह है, कोई मौलवी है, कौन है वो, उसके बारे में कुछ आप लोगों को पता है क्या? और अगर पता है तो क्या किया? नहीं पता है तो आप लोग प्रमुख हैं, आप इस्लामिक धर्मगुरु हैं, आपको क्यों नहीं पता है? अगर हजारों मुसलमान ऐसे गुमराह होकर या भटक कर, और भटकना सामान्य भटकना नहीं, हम लोग भी कहते हैं कि कोई भटक गया, भटक कर आपने कुछ कर दिया, लेकिन यहां तो हम कह रहे हैं कि सीधे सीधे गला काटेंगे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री तक को धमकी दे देंगे। आपको कभी पता नहीं चला? जी, इसका जवाब देने मेरे ख्याल से सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब। मैं हमारे भाई जो बैठे हैं मैं उनका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ सवाल जवाब के लिए नहीं आया था, मैं अपनी बात रखने आया था। मैं एक हिंदुस्तानी हूं। मैंने एक अपनी सोच के साथ, अपनी समझ के साथ एक कोशिश की शुरुआत की है कि इस मुल्क से नफरत को खत्म किया जाए। वहां पे हर्षवर्धन त्रिपाठी ने इसको कॉर्नर किया और उसने कहा कि ठीक है, अभी तो आप यहाँ पे आए हो रिकॉन्सिलिएशन के लिए, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन जब इस तरह के नारे लगते हैं सर तन से जुदा, और आपके ही कुछ चिश्ती हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लीड करते हैं, तो मैं आपसे, यानी कि उसने कहा हर्षवर्धन त्रिपाठी ने, कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आफ्टर ऑल इन नारों के लिए जो ट्रेनिंग है वो कौन सी दरगाह में होती है, कौन से मदरसे में होती है, और आप लोग उसको प्रमोट करते हो कि एग्रेसिवली आप उसको रोकते हो? आप करते क्या हो? यू नो, बाय द वे इट वाज ए वेरी वेरी ब्लंट क्वेश्चन फ्रॉम हिज साइड। तो वहां पे आके उसने क्या किया, इसने सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वहां पे उसने बड़ा डिफेंसिव सा होके बोला कि जो हो गया सो हो गया, यू नो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड ऑल दैट। ये तो एक अप्रोच हो गया। अब मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिंदूज के लिए क्या मैसेज है, मुस्लिम्स के लिए क्या मैसेज है, वहां पे जो मैसेज देना था एनएसए ने वो तो दे लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डिफेंसिव मोड में आ गई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेके, या फिर जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं मुस्लिम सोसाइटी के उनको लेके? इज ही टॉकिंग फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ और इज ही डिफेंसिव? मतलब गवर्नमेंट आफ्टर ऑल भाई स्टेट की पावर है, और स्टेट की पावर मैं मानता हूं कि उनको एग्रेसिवली बात करने की जरूरत नहीं है, उनको एग्रेसिवली एक्शन करने की जरूरत है। कहीं ये डिफेंसिव तो नहीं हुए जा रहे इनके रेडिकल एलिमेंट्स के एग्रेसिव स्टैंड को लेके? सर, मोदी गवर्नमेंट कहीं से भी डिफेंसिव नहीं हो रही है, लेकिन डिप्लोमेसी में रहने के बाद जब आप एक गवर्नमेंट चलाते हैं, पूरे देश की जनता को आप गवर्न कर रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आप गवर्न नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की जनता को आप गवर्न कर रहे हैं। वो कोई भी ओपनली या ब्रेजनली कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते जो कि किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट हो या एक कम्युनिटी को फेवर करता हो।
भारत की यही संस्कृति रही है, जब से भारत 1947 से आजाद हुआ है, यही संस्कृति रही हुई है। गलती केवल हमारे से एक होती आई है कि हम मुस्लिम अपीजमेंट को प्रोपोगेट कर रहे थे, जो कि मोदी गवर्नमेंट उसको रोकना चाहती है, हर एक उस स्टेप को डिसकंटिन्यू करना चाहती है जो कि मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ था। अगर आप देखो तो पीएफआई के खिलाफ निरंतर छापे पड़ रहे हैं, अलग अलग बिहार में पड़ रहे हैं, यूपी में पड़ रहे हैं, अलग अलग राज्य में पीएफआई की जो भी कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये किसी भी तरीके से इस बात से नहीं मानना चाहिए कि भारत सरकार डिफेंसिव हो गई है। मैं ये इस बात को पूरी तरह नहीं जानता कि कितना सच है, बट हर एक हिंदू और मैं कहता हूं 99.9% मुस्लिम ये मानते हैं कि जो इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं वो हिंदुओं को मिटा देना चाहते हैं या बर्बाद कर देना चाहते हैं। मैं क्यों ये कह रहा हूं, अगर आप देखो पाकिस्तान वर्ज ऑफ कोलैप्स के ऊपर है, फिर भी वो कश्मीर का रोना रहता रहेगा। उसकी चेस की टीम, मतलब जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिस देश के पास, उसकी चेस की टीम इंडिया में आई, चेन्नई में, और लास्ट मिनट पे पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया कि भाई हम कश्मीर में इन्होंने ये किया था इसलिए हम नहीं करेंगे। तो पैसे क्यों बर्बाद किए, तुम्हारे पास पैसे वैसे ही नहीं है, उसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो उनको, हर एक को ये लगता है कि अगर हम भारत का विरोध करेंगे या हम हिंदुओं का विरोध करेंगे तो मुस्लिम्स हमको सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम्स मीन्स दे मीन बेसिक जो नीचे का तबका है मुस्लिम्स का, जो कि वोट देते हैं। ये पाकिस्तान की सरकार की भी सोच है, ये भारत की भी सोच। तो मेरे को ये लगता है कि मोदी कहीं ये चाहता है कि ये जो चिश्ती है, हार्ट ऑफ हार्ट हमें पता है कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं, बट किसी तरह से उनको मोटिवेट करना चाहता है जो एनएसए को भेज के इन पूरे ग्रुप्स के लीडर्स के बीच, कि कम से कम एक ऐसा माहौल बना रहे जिसमें आपस में मारकाट ना हो, मतलब एक सौहार्द से रहें, rather than developing into a environment which has got lot of tension, which is not good for the country, which is not good for the government, because government ultimately has to control these activities. If there is any दंगा, कंट्रोल किसको करना? गवर्नमेंट को करना। इससे गवर्नमेंट की बदनामी होती है, गवर्नमेंट का फोकस डाइवर्ट होता है। जो बाहर की कंट्रीज हैं वो गवर्नमेंट को एक अलग नजरिए से देखने लगती हैं। क्यों देखने लगती हैं? भारत के अंदर जितनी भी विपक्षी दल है वो तो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। एक थप्पड़ आए कोई मुसलमान को मार देता है हिंदू, आप देखो उसके लिए डिस्कशन कहां होते हैं? अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में होते हैं, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में डिस्कशन होने लगते हैं। यहां से बंदे जाके वहां लेक्चर देते हैं क्योंकि हिंदुओं, भारत में तो इंटॉलरेंस का माहौल है एक थप्पड़ मारने के ऊपर। दूसरी तरफ गला काट देगा, उसके बारे में तो वो बात ही नहीं करते। कोई शब्द नहीं आप सुनोगे किसी लिबरल या सूडो सेक्युलर के मुंह से गले काटने का विरोध में, वो नहीं बोलेंगे। तो भारत की सरकार बड़े फूक फूक के कदम रखना चाहती है। एक तरफ वो अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं कि अपीजमेंट को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो किसी को भी कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते जिसमें कोई उनसे ये बोल सके कि आपने इस कम्युनिटी को टारगेट किया। ओके, तो मतलब आपका पॉइंट ये है कि रघुराम राजन ने जो कहा, लेटेस्ट उनका इंडिया में स्टेटमेंट आया एक, जहां पे उन्होंने ग्रुप्स को एड्रेस किया है और उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन बना के नहीं रख सकते अगर आपके कंट्री को प्रोग्रेस करनी है। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता बीजेपी या किसी और गवर्नमेंट का कभी ये इंटेंशन रहा हो कि मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए, बट जो वो करते हैं और उसके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट का एक्शन होता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी रेडिकलाइजेशन और एनी एग्रेसिव स्टैंस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। और ये जो सर तन से जुदा और ये जो चल रहा है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज टू टेक एक्शन इन रियल टर्म्स रादर देन इन स्पीकिंग टर्म्स। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हाँ, गवर्नमेंट उस तरह के एक्शंस ले रही है। ओके, अब मैं एक चीज के बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा और वो ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल स्टैंस है यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति या और भी किसी तरह के रिफॉर्म्स के प्रति, मेनली अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि एक पेंडिंग इशू है इस गवर्नमेंट के साथ एक अच्छे खासे लेवल पे, क्योंकि उनके ये इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट भी था। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपने एजेंडे को पूरा करना चाहती है और साथ में ये भी चाहती है कि कंट्री के अंदर एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे,
साम दाम दंड भेद किसी न किसी तरीके से, जिससे इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, इंडिया प्रोग्रेस करे। व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस? और इसी उसमें जो एनएसए की उनके प्रति जो अप्रोच है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अप्रोच है, मींस कहीं भी इनका कोई इंटेंशन इनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का हो भी नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है वो, लेकिन गवर्नमेंट का ये जरूर है कि वो अपने एजेंडा के तहत चल रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द क्रिटिक्स आर सेइंग। ओवर टू यू सर। जो रघुराम राजन ने कहा कि देश की माइनॉरिटी को सेकंड क्लास सिटीजन अगर बना देंगे तो ठीक नहीं होगा, वो उसका स्टेटमेंट उसी लाइट में देखना चाहिए जिस लाइट में लिबरल्स और सूडो सेक्युलर्स बोलते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि 1947 से 2014 तक इस देश में हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा गया। अगर आप देखो, जितने हिंदू टेम्पल्स हैं वो सरकारी कब्जे में हैं, उनमें जो डोनेशंस होता है वो सरकार, प्रदेश सरकार अपने पैसे कब्जे में ले लेती है। दूसरी तरफ मदरसों को सरकारी फंडिंग मिलती है। किसी भी हिंदू के मंदिर के पुजारी को पे नहीं दी जाती, लेकिन मस्जिद के मौलवियों को और जो अजान पढ़ने वाले उनको सरकार पैसा देती है। अगर आप देखो, कुछ साल पहले तक हज की सब्सिडी दी जाती थी। उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू मुसलमान लड़की की जब शादी होती थी उसके लिए 50,000 रुपए दिए जाते थे। तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी थी जिससे इस देश में जो हिंदूज हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह रहे थे। मोदी सरकार क्या करना चाहती है? मोदी सरकार हिंदुओं और मुस्लिम दोनों को एक जैसा बनाना चाहती है, इस अपीजमेंट को दूर करके। और यही बात जो है, जो इस मुस्लिम सोसाइटी को वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करते आए हैं आज तक, उनको खटक रही है। उनको लग रहा है कि ये क्या कर रही है सरकार, क्योंकि हिंदुओं का नंबर ज्यादा है। उनको भी पता है कि अब अगर वो दोबारा इस अपीजमेंट की पॉलिसी को लागू करने की कोशिश करेंगे, हिंदू उनको वोट नहीं देंगे। हिंदू अवेयर हो रहा है, इसीलिए वो चोरी छुपे ये काम करना चाहते हैं कि इस सरकार के ऊपर कम्युनिज्म का ब्लेम लगाना चाहते हैं, इस सरकार के ऊपर इंटॉलरेंस का ब्लेम लगाना चाहते हैं, इस सरकार के ऊपर अपने जो उनके गुर्गे हैं उनके द्वारा कहलाना चाहते हैं कि भाई आप मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन बना रहे हो। कोई भी बंदा एक भी सरकार की स्कीम नहीं बता सकती या मोदी का कोई एक स्टेटमेंट नहीं बता सकता जो कि मुसलमानों के खिलाफ हो या किसी धर्म से हिंदुओं को सपोर्ट करता हो। एक सिंगल स्कीम नहीं है, मोदी का कोई एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं है इस बारे में। यह सिर्फ एक तरीका है मोदी सरकार को बैकफुट पे रखने का। जो विपक्षी दल है वो नहीं चाहते हैं कि मोदी विकास की तरफ बिना किसी रोक टोक के बढ़ता रहे जैसा वो बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए इस तरह के एजेंडा फैलाए जाते हैं जिससे कि मुस्लिम भड़के, हिंदुओं को भड़के और आपस में इनका लड़ाई झगड़ा हो। ये तो एक इस जनरल के बारे में बात कहूंगा। दूसरी बात आपने जो बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, मेरे ख्याल से एक ये बहुत ही जरूरी कदम है इस देश में, एक सही तरीके से एक सामान्य तरीके से हिंदू मुस्लिम्स को रहने के लिए। अब वो मेरे को लगता है कि दे आर वेट कर रहे हैं कि वो इलेक्शन होने से एक आध साल पहले मोस्ट प्रोबेबली इसको लाएंगे। हर एक पार्टी तभी अपना एजेंडा लागू कर सकती है जब तक वो पावर में है। अगर पावर में नहीं है तो कोई भी अपना एजेंडा लागू नहीं कर सकती। तो हर एक पार्टी के लिए पहला स्टेप जरूरी है कि वो पावर में बनी रहे। उस पावर में बनी रहने के लिए भारत की जो जनता है उसकी मेमोरी बहुत छोटी होती है। 2 महीने में भूल जाते हैं कि भाई पहले क्या काम किया था। अगर आप किसी से पूछो कि जो 2019 में 370 धारा उठाई थी, आज किसी के लिए उसकी कोई रिलेवेंस ही नहीं। Nobody is having any relevance to that issue because वो भूल चुके हैं, वो भूल गए। अभी नया इशू आ जाता है, वो नया इशू देखने लगते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये इलेक्शन होने से एक साल पहले करीब ये करेंगे और ये उनका पोल मैनिफेस्टो का पार्ट था। मोदी अपनी जितनी भी चीजें उसने मैनिफेस्टो में लिखी थी उनको हर एक चीज को पूरा करने का उसका 100% प्रयास है, ये मेरा मानना है। तो इस चीज को लाएंगे जरूर, वेट कर रहे हैं सही समय आने का, और मेरे को लगता है वो सही समय अगला साल में या इस साल के आखिर में या अगले साल में वो समय आएगा जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। Really wonderful, Colonel Kirti Sharma. Very wonderful narrative from your side, and I am very optimistic that government is on the right lines. They are dealing
properly with PFI, and probably the organization will be banned at the right time, right place, with the right evidence in hand, so that it cannot be challenged in the court. So with that note, thank you so much, and we look forward to see you again on this channel. Thank you. I hope you liked this conversation. I'll request you to like, share, and subscribe. I will see you in next video.